Yes, sir. Okay. So yesterday, यानी कि in previous class, last Tuesday, we have discussed about the working of the four-stroke petrol engine. Today we will be discuss about the working and construction of the two-stroke petrol engine. So I have told you in previous class कि what is the meaning of the four-stroke. So what is the meaning of the four-stroke? Anyone? बताओ भाई क्या मतलब होता है फोर-स्ट्रोक का, जल्दी बताओ. हाँ भाई जल्दी बताओ. Distance traveled by piston from TDC to BDC two times. टू टाइम्स. Yes, sir. TDC Four to times, sir. Four times. फोर टाइम्स. ओके. सो सिंपली यानी कि स्टॉक इज नथिंग, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन फ्रॉम TDC टू BDC. यानी कि पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम TDC टू BDC, एक स्टॉक हो गया, उसके बाद अगेन BDC टू TDC तो दूसरा स्टॉक हो गया. सो इन केस ऑफ द फोर स्टॉक इंजन, cycle and working operation, all the process, suction, compression, power and exhaust process, all four process are complete in four stroke, यानी कि one process in one stroke. yes या no? ये तो था भाई. Yes, sir. But as the we are moving towards the working and construction of the two stroke petrol engine, so here four process that will be the suction. फोर प्रोसेस जो तुम्हारे यानी प्रोसेस नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4, फोर प्रोसेस यानी इसमें क्या होगा तुम्हारा सेक्शन, इसको इनटेक भी कहते हैं. सेक्शन, दूसरा तुम्हारा कंप्रेशन, एंड थर्ड वन क्या होता है, पावर स्ट्रोक. वर्किंग ऑफ पावर स्ट्रोक, पावर प्रोसेस एंड एग्जॉस्ट. ये चार प्रोसेस होते हैं इन ईच एंड एवरी इंजन. इट्स नॉट ए मैटर कि वो दो स्ट्रोक है या तीन स्ट्रोक है या चार स्ट्रोक है. ये चार प्रोसेस होनी कंपलसरी है, अदरवाइज जो है साइकिल कंप्लीट नहीं होगा. बिकॉज जो साइकिल कंप्लीट होता है फोर प्रोसेस में होता है. सो हेयर we are moving towards from four stroke to two stroke. So in case of the two stroke engine, cycle is completed in two stroke only. Two stroke only का means मतलब suppose कि piston is moving from BDC to TDC, ये एक स्ट्रोक हो गया. now from TDC to BDC दूसरा स्ट्रोक हो गया. so only in two cycle, in two stroke all four process has been completed. कितने उसमें हो जाएंगे, दो में. दो में हो जाएंगे. यानी पिस्टन विल मूव ओनली, यानी कि देयर इज ओनली वन रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट. इन केस ऑफ द फोर स्ट्रोक इंजन, व्हेन द पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम, जब TDC से BDC की तरफ मूव करता है तो क्रैंक जो हमारा 180 डिग्री से रोटेट हो जाता है. अगेन जब ये BDC से TDC की तरफ मूव करेगा तो 180 से और रोटेट हो गया तो पूरा 360 से रोटेट हो गया. यानी दो स्ट्रोक में पूरा 360 से रोटेट हो जाता है. इन केस ऑफ द फोर स्ट्रोक इंजन, there are two revolution of the crankshaft, but in case of the two stroke engine there is only one revolution of the crankshaft. yes or no? Yes, Yes, sir. sir. So uh, this is the first difference. क्या तुम्हारा कि what is the first difference between the four stroke and two stroke? कि here the cycle, यानी कि जो तुम्हारे four process है that will be completed in two stroke only. yes or no? Yes, sir. And in case of the four stroke engine, these are completed in the four stroke. यानी कि each operation, each process is occurring in a single stroke. यानी एक प्रोसेस एक साइकिल में एक स्ट्रोक में कंप्लीट हो रहा था. बट टू स्ट्रोक के केस में क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रोक में दो प्रोसेस एक साथ होंगे. yes या no? Yes, sir. भाई चार प्रोसेस को कंप्लीट होना है तो एक दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस एक साथ होंगे तभी तो कंप्लीट होगा. ओके. ये तो थोड़ा एक ये तो तुम्हारा स्ट्रोक वाइज डिफरेंस होता है. व्हाट इज द कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस क्या होता है,
constructional difference, as you can see कि there is no crankcase in case of the 4-stroke engine. 4-stroke इंजन के केस में कोई crankcase नहीं होता है. This lower hemispherical और cylindrical portion, यानी कि ये जो portion है, it does not matter कि what is the shape. So this lower portion of the 2-stroke engine is known as the crankcase, but there is no crankcase in case of the 4-stroke engine. 4-stroke engine के केस में कोई crankcase नहीं था, ये तुम्हारा crankcase होता है. उसके बाद रिमेनिंग थिंग्स आर सेम. यहाँ हमारा कनेक्टिंग रोड होता है, पिस्टन होता है, पिस्टन यानी पिस्टन होता है. उसके बाद अगेन देयर इज ए डिफरेंस. देयर इज ए डिफ्लेक्टर एट द टॉप ऑफ द, यानी कि एट द टॉप ऑफ द पिस्टन. देयर इज नो डिफ्लेक्टर इन केस ऑफ द 4-स्ट्रोक इंजन. कोई डिफ्लेक्टर वहाँ पे नहीं था. इज इट ये है नहीं. Yes, sir. And again there is a again constructional difference. We have the inlet valve and exhaust valve which are attached at the top. यानी यहाँ पर हमारे inlet valve और exhaust valve होते थे in case of the 4-stroke engine, but there is no valve in case of the 2-stroke engine. There is only intake port and exhaust port, as well as there is a third port which is known as the transfer port. There are 3 ports in the case of the 2-stroke engine. What are these? First port is the intake port हो गया तुम्हारा, सेकेंड तुम्हारा ये एग्जॉस्ट पोर्ट हो गया, एंड थर्ड पोर्ट इज नोन एज द, ये तुम्हारा होता है ट्रांसफर पोर्ट. इसको कहते हैं यहाँ से ये जो एक लाइन है, यानी कि ये कैविटी है, दिस इज नोन एज द ट्रांसफर पोर्ट. दिस इज द थर्ड पोर्ट विच इज नोन एज द ट्रांसफर पोर्ट. सो इन केस ऑफ द 4-stroke engine we have only inlet valve and exhaust valve, but here there is no valve. Valve has been replaced by the port, and first this one known as the intake port, second one is known as the exhaust port, and third port, which is very important and essential. This question will be asked you in several times कि what are the 3 different ports available in the 2-stroke engine. तो ये लोग तुम चाहे लिख लो या तुम लोग याद रखो, इट्स रिमेन अप टू यू, बट आई हैव टोल्ड यू कि there are 3 ports in case of the 2-stroke engine. Clear? Yes, you know up to this point. Yes, sir. So we have an inlet port, exhaust port, and transfer port. These are the constructional difference. So there is a constructional difference also. constructional जो construction में जो है 2-stroke और 4-stroke की वो difference है. स्पार्क प्लग उसमें भी था, यहाँ पे भी है, वो difference नहीं है. But difference क्या क्या है? Which are the major differential part I have told you. कि there is a crankcase at the lower of the engine. There is a crankcase at the lower portion of the engine. There is no crankcase in case of the 4-stroke engine. Secondly, we have a deflector which are attached at the top of the piston. There is no deflector in case of the 4-stroke engine. And third difference, I have told you that there is no valve in case of the 2-stroke engine. We have the ports in case of the 2-stroke engine. यानी 2-stroke जो 2-stroke जो इंजन है उसमें हमारे कोई valve नहीं होते हैं. We have the port. एक intake port होता है, दूसरा exhaust port होता है, and third port is known as the transfer port. So up to this point, clear to everyone? Yes, sir. Okay. So this is all about the construction. अभी तो हमने इसकी construction की बात करी है. We did not move towards the working of the, अभी हम working की तरफ को हमने move नहीं किया है. So up to this point construction wise क्या difference होते हैं, ये सबको clear हो गया भाई कि what are the difference according to the construction. कि construction wise क्या difference है, clear? Yes, sir. अब मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बिफोर, यानी कि इसकी वर्किंग कि हाउ इट वर्क, ये तुम्हारा जो 4 प्रोसेस हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट प्रोसेस, कैसे कंप्लीट होते हैं इन केस ऑफ द 2-stroke इंजन. ये तुम्हारे इसको थोड़ा ध्यान से समझो, बिकॉज ये समझ में नहीं आएगा अगर इसको ध्यान से नहीं समझोगे तो. दीज आर नॉट सेम एज केस ऑफ द 4-stroke इंजन की तरह नहीं है, थोड़ा ये डिफरेंट होते हैं. सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स द वर्किंग की तरफ. अगर हम मूव करें अगर हम इसकी वर्किंग की तरफ मूव करें तो वर्किंग में हमारे पास जो है, इसके लिए मैं वर्किंग में पहले मैं फर्स्ट थिंग्स विच इज़ यू मस्ट रिमेंबर कि व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग्स विच हैपन इन केस ऑफ द 2-stroke इंजन इज दैट के वर्किंग वी आर नाउ लर्निंग द वर्किंग ऑफ द 2-stroke इंजन. सो वर्किंग में क्या होता है, बिफोर द फर्स्ट स्ट्रोक एंड सेकेंड स्ट्रोक, वी जस्ट लर्न
हमें पहले ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्ट्रोक सेकंड स्ट्रोक की तो बात हम बाद में करेंगे, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ द एयर इज कमिंग इनसाइड द टू स्ट्रोक इंजन। एयर जो है तुम्हारा इस टू स्ट्रोक इंजन के अंदर कैसे आ रही है, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो बिफोर यानी कि बिफोर लर्निंग द फर्स्ट स्ट्रोक एंड सेकंड स्ट्रोक वी विल बी लर्न हेयर दिस इज आल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द वर्किंग एंड दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंट, यानी यही तुम्हारा मेन इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। सो समझना क्या है कि हाउ द एयर इज कमिंग इनसाइड द टू स्ट्रोक इंजन। एयर जो है तुम्हारी टू स्ट्रोक इंजन में कैसे जो है सिलेंडर इसके अंदर आती है और क्या 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 होता है एयर के साथ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज तुम लोगों की तुम्हें वर्किंग कुछ समझ में नहीं आएगी। सो स्टार्ट करें भाई। यस सर। सो एयर जो आती है, सो इसको समझने के लिए अभी मैंने पहले ही बता दिया तुम लोगों को, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट स्ट्रोक और सेकंड स्ट्रोक बिकॉज देयर आर ओनली टू स्ट्रोक इन द टू, इसमें दो स्ट्रोक है, जो टू स्ट्रोक इंजन है तो इसमें दो ही स्ट्रोक होंगे। अभी हम स्ट्रोक्स की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट वी आर लर्निंग हेयर कि हाउ द एयर इज कमिंग इनसाइड द टू स्ट्रोक इंजन के अंदर कैसे आती है, हम ये लर्न करना पहले हमें। तो इसको लर्न करने के लिए सबसे सिंपल एग्जांपल तुम ये देखो कि हेयर पिस्टन इज एट बीडीसी। पिस्टन हमारा कहाँ पे है भाई? बीडीसी पे। बीडीसी पर बीडीसी पे है पिस्टन हमारा, यानी कि यू ऑलवेज रिमेंबर कि हाउ द एयर इज कमिंग, ये तुम्हें याद रखना होगा। तो सपोज करो आवर पिस्टन इज एट बीडीसी एंड पिस्टन हैज़ बीन स्टार्टेड टू मूव फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। पिस्टन ने हमारा बीडीसी से टीडीसी की तरह मूव करना स्टार्ट कर दिया है। क्या कर दिया अभी हमारा पिस्टन ने? बीडीसी से टीडीसी की तरफ अब हाँ मूव करना जब स्टार्ट करेगी, व्हेन द पिस्टन विल स्टार्ट फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। सो ये हमारा क्रैंक केस है, यानी कि दिस इज अवर क्रैंक केस। बीच में ये हमारा क्या है? क्रैंक केस है। बीच में हमारा ये लोअर पोर्शन में होता है हमारा क्रैंक केस। नाउ व्हेन द पिस्टन विल मूव इन, ये तुम्हारा जैसे जैसे ऊपर मूव करेगी, सो क्या होगा? सबसे पहले ये किसको अनकवर करेगी? अगर ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो विच पोर्ट फिर भी अनकवर फर्स्ट, यानी पिस्टन यानी कवर कर रखा है इसने। अभी कौन सा पोर्ट को कवर कर रखा है? इसने इनटेक पोर्ट को कवर कर रखा है। एग्जॉस्ट और ट्रांसफर पोर्ट दोनों अनकवर है। बट व्हेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करना शुरू करेगी तो सबसे पहले ये ट्रांसफर पोर्ट को कवर करेगी। अभी इस एट ए टाइम ओनली वन एट ए टाइम जो है तुम्हारा एक ही पोर्ट खुला हुआ होता है, कभी कभी दो भी खुले होते हैं। तो ये समझना तुम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि इसमें एयर आती कैसे है। तो व्हेन द पिस्टन हैज़ बीन स्टार्टेड मूव इन द टूवर्ड्स द टीडीसी, फ्रॉम बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, सो अभी क्या होगी? ये तुम्हारी ट्रांसफर पोर्ट को अनकवर कर देगी। यानी ये थोड़ा सा ऊपर मूव करेगी तो यहाँ पर आ जाएगी, तो ये ट्रांसफर पोर्ट बंद हो जाएगा, नहीं बंद हो जाएगा? ये वाला पोर्ट यहाँ से खुला हुआ, अभी ये वाला पोर्शन बंद हो जाएगा तो ये पोर्ट बंद हो जाएगा। यस या नो? यस सर। सो एज जैसे पिस्टन थोड़ा सा ऊपर मूव करेगी, बीडीसी से थोड़ा सा ऊपर मूव करेगी, ये ट्रांसफर पोर्ट बंद हो गया। यानी कि पिस्टन हमारी यहाँ पर आ गई, समवेयर यहाँ पर हमारी पिस्टन आ गई है। पिस्टन की कंडीशन हमारी ये है, ये समझ करो कि दिस इज द कंडीशन ऑफ द पिस्टन। अब जब ये कंडीशन है पिस्टन की हमारी, अब और थोड़ा ऊपर मूव करेगी ना, थोड़ा सा और मूव करेगी। जब थोड़ा सा ऊपर और मूव करेगी तो हमारी ये कंडीशन बन जाएगी कि पिस्टन हमारी के कुछ इस कंडीशन में आ जाएगी। सपोज करो कि इस कंडीशन हमारी पिस्टन आ जाती है कि थोड़ा सा ट्रांसफर, थोड़ा सा इनलेट पोर्ट जो है हमारा खुल जाता है, बाकी दोनों पोर्ट ये बंद हो जाते हैं। ओनली विच पोर्ट इज नाउ इज, यानी कि पार्शियली ओपन हुआ, अभी पूरा ओपन नहीं हुआ है, थोड़ा सा ओपन हुआ कि पिस्टन ने थोड़ा सा अनकवर करा किसको? इनटेक पोर्ट को। बात समझ में आ रही नहीं आ रही यहाँ तक? ये बताओ। यस सर। यस सर। यानी कि व्हेन द पिस्टन इज एट जस्ट बीडीसी, तो हमारा ये ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट दोनों खुले हुए हैं। बट हमें ये डिस्कस नहीं करना है कि पिस्टन बीडीसी पे है। वी आर डिस्कसिंग हेयर कि हाउ द एयर इज कमिंग इनसाइड द क्रैंक केस के अंदर, यानी कि इस टू स्ट्रोक इंजन के अंदर एयर आती कैसे है, कैसे एयर और पेट्रोल का मिक्सचर आता है। बिकॉज ये पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर आएगा। अब आने के लिए हमने ये कंडीशन किया, पिस्टन हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी तो हमारा सबसे पहले ये इसको ट्रांसफर पोर्ट को कवर करना शुरू करेगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये एग्जॉस्ट पोर्ट को कवर करेगी और ये तुम्हारा थोड़ा सा इनटेक पोर्ट ओपन हो जाएगा। यस या नो? बताइए। यस सर। अब इतने, यानी कि पिस्टन ने थोड़ा सा मूव किया है,
थोड़ा सा पिस्टन ऊपर गई है, हमारा ट्रांसफर पोर्ट एग्जॉस्ट पोर्ट दोनों ही बंद हो गए हैं, बट इनलेट पोर्ट हमारा खुलना शुरू हो गया है। सो उसके खुलने से पहले ही जब पिस्टन ने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया था, तो आई हैव टोल्ड यू वेरी सिंपल एग्जांपल कि सिरिंज में क्या होता है, जब हम पिस्टन को खींचते हैं सिरिंज की, तो उसमें एक वैक्यूम क्रिएट होता है, यस या नो, प्रेशर डिफरेंस Yes, क्रिएट sir. होता है। Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, व्हेन द पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, तो इस पोर्शन में तुम्हारा यानी कि ये लोअर पोर्शन है, ये क्रैंक केस है, जो बड़ा वाला पोर्शन है, यही तो सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन है। इसमें सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा, क्रैंक केस है, ज़्यादा वॉल्यूम Yes, का sir. है। सो इसमें क्या होगा, जैसे ये यानी कि एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा जैसे ही ऊपर करना मूव करेगी। वैक्यूम क्रिएशन का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रेशर जो है तुम्हारा कम हो रहा है एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर जो है तुम्हारा क्रैंक केस में कम हो रहा है जैसे जैसे पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रही है, यस या नो। Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे ये प्रेशर कम हो गया तो प्रेशर डिफरेंस हो गया, यानी कि प्रेशर इनसाइड द क्रैंक केस एंड प्रेशर आउटसाइड इज, आउटसाइड का प्रेशर ज़्यादा है और इनसाइड का प्रेशर कम है। सो एयर कहाँ से मूव करेगी, एयर या वाटर कहाँ से मूव करता है कि जहाँ से प्रेशर की तरफ वैल्यू कम होती है उस तरफ को मूव करता है। सो अब नाउ एयर फ्रॉम द एयर एज वेल एज द पेट्रोल मिक्सचर, एक कार्बोरेटर एक डिवाइस होती है जो एयर और पेट्रोल के मिक्सचर को जो प्रिपेयर करता है और उसको सेंड करता है इंजन के अंदर। तो वो क्या करेगा, जैसे ही इनलेट पोर्ट थोड़ा सा ओपन होगा, प्रेशर डिफरेंस से तुम्हारा कार्बोरेटर से एयर और पेट्रोल का मिक्सचर किसके अंदर आ जाएगा भाई, किसके अंदर Crank आएगा, case. क्रैंक केस के अंदर आ जाएगा। यही तुम लोगों को समझना है कि हाउ द एयर एंड पेट्रोल इज कमिंग इनसाइड द बिफोर वर्किंग, यानी कि वर्किंग में ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ जो वो यही है। उसके बाद हम आगे मूव करेंगे कि फर्स्ट स्ट्रोक सेकंड स्ट्रोक क्या होता है। बट अगर तुम लोगों को यही समझ में नहीं आएगा कि एयर आई कैसे है और क्या क्या एयर के साथ हो रहा है, सो यू विल नेवर एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द फर्स्ट स्ट्रोक एंड सेकंड स्ट्रोक ऑफ द टू स्ट्रोक इंजन। सो अप टू दिस पॉइंट क्लियर सबको कि हाउ द एयर इज कमिंग एंड पेट्रोल इनसाइड द सिलेंडर, और सॉरी क्रैंक केस में कैसे आ रहा है। Yes, sir. सो ये तुम्हारा क्या है, जैसे जैसे ये ऊपर की तरह मूव करता रहेगा इसमें प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता रहेगा, और जब तक पिस्टन तुम्हारा पूरा का पूरा कहाँ नहीं पहुंच जाएगा, टीडीसी पे नहीं पहुंच जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है कि पिस्टन इज जस्ट अबाउट, यानी कि इसी डायग्राम को अगर हम देख लें तो ये जस्ट अबाउट टीडीसी पे पहुंचने वाला है, ये सीधा हो जाएगा तो टीडीसी पे पहुंच जाएगा, यस या नो। Yes, sir. Yes, sir. तो इन दिस सिनेरियो ट्रांसफर पोर्ट से भी कुछ इधर की तरफ मूव नहीं करेगा, ऊपर की तरफ कुछ नहीं जाएगा। एग्जॉस्ट पोर्ट भी तुम्हारा कवर किया हुआ है, ट्रांसफर पोर्ट भी कवर किया हुआ, ओनली वन पोर्ट विच इज इन द ओपन कंडीशन, दैट इज द इनलेट पोर्ट। सो इनलेट पोर्ट से तुम्हारा एयर और पेट्रोल का मिक्सचर इस क्रैंक केस के अंदर आ जाएगा। कब तक आएगा ये, कब तक आएगा भाई, जब तक जब तक ये इंटैक्ट खुला टीडीसी है. तक नहीं पहुंच जाए। जब नहीं ये आता रहेगा, टीडीसी तक पहुंच गया, आ रहा है अब भी आ रहा है, उसके बाद टीडीसी तक पहुंच गया। बट क्या है, जब टीडीसी तक पहुंच गया, टीडीसी के बाद एयर और पेट्रोल कंटिन्यूअसली आ रहा है। नाउ पिस्टन हैज बीन, टीडीसी में पहुंचने के बाद पिस्टन हैज बीन स्टार्टेड मूव टुवर्ड्स द बीडीसी अगेन। टीडीसी पे जाएगा उसके बाद तो बीडीसी में उसको आने ही है, तो नहीं वहीं रुका रहेगा। ये से बताइए। Yes, sir. यस सर। ये तो बहुत लेस टाइम होता है, यानी माइक्रो सेकंड का टाइम होता है कि इतने टाइम में पिस्टन ऊपर पहुंच जाता है तो उसके नीचे आता है। सो अब उसके बाद ये पिस्टन ऊपर से नीचे आना स्टार्ट करेगा, तो अब क्या होगा, नाउ व्हाट विल हैपन नाउ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये तुम्हारा इनलेट पोर्ट बंद कब होगा, और जो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर इस क्रैंक केस के अंदर आया उसके साथ क्या होगा। ये माइक बंद करो, किसका ओपन है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग है, अब हमारा जो है तुम्हारा ये पूरा क्रैंक केस भाई देख लो पूरा का पूरा किससे भर गया है। ये एयर और पेट्रोल के मिक्सचर से फिल, ये जो ग्रीन शो कर रहा है इट इज शोइंग के नाउ अवर एयर एंड पेट्रोल के मिक्सचर से हमारा पूरा का पूरा क्रैंक केस भर गया है। यस चलो, Yes, sir. यस सर। अब क्या होगा, ये एयर और पेट्रोल का मिक्सचर का क्या होगा। नाउ पिस्टन हैज बीन स्टार्टेड, टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा। तो जब पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा तो जैसे जैसे नीचे की तरफ मूव करता रहेगा, एयर और पेट्रोल का मिक्सचर को कंप्रेस होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा नहीं होगा। यस नो बताइए। यस सर। कम ऑन। Yes, sir. यस सर। तो जैसे जैसे ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ये हमारा कंप्रेस होता रहेगा एयर और पेट्रोल का मिक्सचर। यस नो। Yes, sir. यस सर। अब ये तो कंप्रेस यानी कंप्रेस भी हो रहा है, उसके साथ साथ और क्या होगा, सबसे पहले क्या करेगा, जैसे पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा
सो ये थोड़ी देर में आफ्टर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या करेगा तुम्हारा ये क्या कर लेगा, इसको अनकवर कर देगा। किसको अनकवर कर देगा भाई? ये तुम्हारा जो है, सॉरी सबसे पहले ये इसको जैसे ये नीचे की तरह यहाँ सपोज करो यहाँ पे आएगा एक पिस्टन और यहाँ पे आया, तो ये तुम्हारा इसको कवर कर लेगा इतने पोर्शन को। ये यानी कि इनलेट पोर्ट बंद होना स्टार्ट हो गया, मेरा कहने का मतलब है ये से नो, जैसे पिस्टन नीचे यस सर। यानी इसने Yes, sir. इसने कवर कर लिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद अगर ये यहाँ पे आ गया पिस्टन, तो इसने ये लगभग पूरा के पूरा ही कवर कर लेगा। उसके बाद और अगर नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, तुम्हारा ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो जाएगा। पहले ट्रांसफर पोर्ट ओपन होगा। कौन सा पोर्ट ओपन होगा भाई? ट्रांसफर पोर्ट। ट्रांसपोर्ट। यानी कि जैसे जैसे पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा, ये तो कंप्रेस हो रहा है। अब ये कंप्रेस चार्ज है और कंप्रेस चार्ज का वॉल्यूम कम हो रहा है, बट जैसे जैसे पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा हमारा ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो जाएगा और ये इनलेट वाल्व हमारा, ये इनलेट पोर्ट बंद होता चला जाएगा। सो जैसे ये तुम्हारा इनलेट पोर्ट बंद होगा और ट्रांसफर पोर्ट ओपन करेगा, यहाँ से कंप्रेस्ड एयर और पेट्रोल का मिक्सचर कहाँ भगेगा? सिलेंडर में ऊपर की तरफ। हमारा सिलेंडर जो है वो ये है, दिस इज आवर सिलेंडर। ये हमारा कंबशन चैम्बर है, यहीं पे हमारा कंबशन होगा। सो ओनली यानी एग्जॉस्ट पोर्ट के ऊपर वाला पोर्शन ये हमारा जो है तुम्हारा सिलेंडर है। ये हमारा क्या तुम्हारा सिलेंडर है, ये हमारा क्रैंक केस है। सो क्रैंक केस में जो हमारा एयर और पेट्रोल का मिक्सचर आया था, कंप्रेस हो रहा था, कंप्रेस भी हो रहा था। जैसे जैसे तुम्हारा ये ट्रांसफर पोर्ट को अनकवर करेगी पिस्टन, ट्रांसफर पोर्ट से वो एकदम से कहाँ मूव करेगा? ऊपर की तरफ मूव करेगा या नहीं करेगा? ये सुनो बताइए आप लोग। यस सर। सो ये होता तुम्हारा कि हाउ द एयर एंड पेट्रोल मिक्सचर इज कमिंग इनसाइड द सिलेंडर एंड हाउ द कंबशन, हाउ उसका कंप्रेशन कैसे हो रहा है। अभी मैंने सिर्फ ये बताया तुम लोगों को कि हमारा एयर और पेट्रोल का मिक्सचर आ रहा है और वो कंप्रेस भी हो रहा है। यस या नो? अरे यस सर। उसके बाद अगेन और थोड़ा और सुन लो, अभी तो हमारा यही चल रहा है, आगे तो अभी मूव नहीं किए। सो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर आ गया, ठीक है, आ गया वो कंप्रेस फॉर्म में, तो ऊपर की तरफ पहुंच गया। नाउ पिस्टन ने अगेन तुम्हारा बीडीसी से टीडीसी की तरफ को मूव करना शुरू किया। वो तो कर रही है ना कंटिन्यूसली, टीडीसी से बीडीसी तक। तो बीडीसी से टीडीसी की तरफ ऊपर जाएगी नहीं जाएगी? इसमें बताइए। यस सर। अब जो चार्ज यहाँ पे कंप्रेस, जो नहीं कि जो हल्का सा कंप्रेस हुआ था, कंप्रेस होकर यहाँ पे आ गया है। जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगी, यानी कि इसको दोनों पोर्ट को बंद कर देगी। जब दोनों पोर्ट को ऊपर बंद कर देगी यहाँ पे, तो जो हमारे अंदर इसके अंदर यानी ऊपर वाले पोर्शन में जो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर आया था, वो ज़्यादा कंप्रेस होगा अब एज कम्पेयर टू द क्रैंक केस। यस या नो? फर्दर कंप्रेशन, रियल में कंप्रेशन यही होता है। यहाँ पे तो बहुत माइनर क्वांटिटी में कंप्रेशन होता है, बट व्हेन द पिस्टन विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम बीडीसी, जो टीडीसी की तरफ मूव करेगी, तो ये तुम्हारा इनलेट पोर्ट फिर दोबारा से ओपन हो जाएगा, ट्रांसफर पोर्ट बंद हो जाएगा, एग्जॉस्ट पोर्ट भी बंद हो जाएगा, और जो चार्ज तुम्हारा फ्रेश चार्ज एयर और पेट्रोल का इसके अंदर आया है वो कंप्रेस हो जाएगा। ये तुम लोगों को अभी तक समझना था कि एयर और पेट्रोल का मिक्सचर कैसे अंदर आ रहा है और हाउ द कंप्रेशन इज टेकिंग प्लेस इन दैट एयर एंड पेट्रोल मिक्सचर। सो अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो सबको आगे की तरफ मूव करें हम। ये सुनो बताइए। यस सर। यानी कि दिस इज द मेजर, यानी ये तुम्हें वर्किंग, अगर तुम्हें इफ यू वांट टू लर्न द वर्किंग ऑफ द टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, सो ये तुम्हें आना चाहिए। अगर तुम लोग ये नहीं जानते हो, तुम इसकी वर्किंग को कभी बता ही नहीं सकते हो कि हाउ द वर्किंग ऑफ द टू स्ट्रोक इंजन, बिकॉज इट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग। ये टू स्ट्रोक इंजन की जो वर्किंग है वो 4 स्ट्रोक की वर्किंग से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है। सो इसकी कॉम्प्लिकेशन को समझने के लिए ये तुम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हाउ द एयर एंड पेट्रोल मिक्सचर इज कमिंग इनसाइड द क्रैंक केस एंड हाउ द कंप्रेशन, उसका कंप्रेशन कैसे हो रहा है और कैसे आ रहा है। सो कंटिन्यूसली ये क्या होगा, जैसे ये पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता रहेगा एंड बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता रहेगा, फ्रेश एयर और पेट्रोल का मिक्सचर इस क्रैंक केस के अंदर आता रहेगा और क्रैंक केस से वो सिलेंडर के अंदर जाता रहेगा और उसका कंप्रेशन होता रहेगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई तुम लोगों को? यस या नो बताइए सब लोग। यस सर। सो दिस इज ऑल अबाउट द के यानी कि हाउ द एयर पेट्रोल मिक्सचर इज कमिंग इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर कैसे आ रहा है। देखो ये तो क्रैंक केस में आ रहा है, क्रैंक केस में आना इट्स नॉट ए बिग टास्क, बट हाउ द एयर पेट्रोल मिक्सचर इज कमिंग इनटू द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर कैसे आ रहा है और उसका कंप्रेशन कैसे हो रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी था। सो क्रैंक केस में आने के यानी कि सिलेंडर में आने के लिए पहले एयर और पेट्रोल का मिक्सचर क्रैंक केस में आएगा,
वो हल्का कंप्रेस होगा। नाउ कंप्रेस होने के बाद वो ट्रांसफर पोर्ट से कहाँ जाएगा भाई, सिलेंडर के अंदर जाएगा, यस या नो। यस सर। और जैसे पिस्टन यस सर। उसके बाद जैसे पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा वो कंप्रेस हो जाएगा। सो नाउ अगर तुम लोगों को ये समझ में आ गया तो नाउ यू विल बी, तुम लोगों के लिए इसकी वर्किंग को समझना बहुत ईजी है। अब यहाँ तक सबको समझ में आ गया तो हम आगे की तरफ मूव करें। बताइए भी सब लोग। यस सर। सर यस सर। सर बात पूछनी थी सर। बात पूछनी थी, बताओ। सर उसमें कोई वेलोसिटी भी होता है टीडीसी से बीडीसी के पिस्टन जब मूव करती है तो? क्या वेलोसिटी होता है? सर पिस्टन बीडीसी से टीडीसी के बीच मूव करता है तो सर उसमें वेलोसिटी लिमिट भी होती है। वेलोसिटी लिमिट कौन सी वेलोसिटी लिमिट? सर कोई लिमिट होगा ना कि वो कितने बार अप डाउन कर रहा है। ये अप डाउन का मतलब क्या है यहाँ पे? हम क्या लर्न कर रहे हैं यहाँ पे? सर टीडीसी से बीडीसी की ओर जब अप डाउन करता है ना पिस्टन, सर तो लिमिट होगा ना कि कितनी बार वो जाएगा आएगा, इसका कोई लिमिट होगा ना सर? कितनी बार आएगा जाएगा? किस चीज पे ये डिपेंड कोई चीज पे रहता है ना सर? अरे तुम ये बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो यहाँ पे? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। उल्लू उल्लू हो क्या तुम? मैंने वेलोसिटी के बारे में कुछ बताया है तुम लोगों को? वेलोसिटी के बारे में तो पढ़ ले हो कुछ लोग? सॉरी सर। मैं बता रहा हूँ आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन में इसकी वर्किंग कैसे होती है, थियोरेटिकली कंडीशन में कैसे ये टू स्ट्रोक इंजन वर्क करता है। तुम ये वेलोसिटी ले आए, बेवकूफ हो, पागल हो, मेंटल हो। जो चीज बता रहा हूँ वो तो समझ नहीं, वेलोसिटी को जाके बोलने लगे। वेलोसिटी से तुम्हारा यहाँ क्या लेना देना? वी आर लर्निंग हियर कि हमारा टू स्ट्रोक इंजन वर्क कैसे करता है, उसकी वर्किंग करने के लिए क्या समझना जरूरी है। जो चीज़ समझनी वो तो समझ नहीं रहे हो, वेलोसिटी पहुँच गए वहाँ। मैंने तुम लोगों को सिर्फ यहाँ पे ये बताया है कि हमारा पिस्टन पहले बीडीसी से टीडीसी की तरफ चला गया, टीडीसी से बीडीसी की तरफ आ गया, उसके बाद अगेन बीडीसी से टीडीसी की तरफ चला गया। तो कितनी बार चला गया ये? कितने राउंड चला गया? 3 बार गया नहीं गया? 3 स्ट्रोक कर लिए कंप्लीट इसने, यस नो? यस सर। तो इसे वेलोसिटी का क्या चक्कर आ गया? और मैंने तुम लोगों को बताया कि बिफोर लर्निंग द फर्स्ट स्ट्रोक एंड सेकंड स्ट्रोक, ये समझना बहुत जरूरी है कि हाउ द एयर एंड पेट्रोल मिक्सचर इज जस्ट कमिंग इनसाइड दिस, इसके क्रैंक केस के अंदर कैसे आ रहा, क्रैंक केस से सिलेंडर में कैसे जा रहा, उसके बाद उसका कैसे कंप्रेशन हो रहा है। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? आ गई सर। तो इसमें वेलोसिटी का क्या चक्कर आ गया? मेरी तो ये समझ में नहीं आया। वेलोसिटी के बारे में मैंने कुछ बताया तुम लोगों को? नो सर। देखो आलतू फालतू की जो है ना, यहाँ पे जो है ना, जब क्लास चले ना आलतू फालतू के क्वेश्चन, इस तरह के स्टूपिड क्वेश्चन हो ना तो वो क्लास की बिल्कुल बाद में पूछा करो। क्लास का रिदम खराब मत करो, दूसरे बच्चों को भी कंफ्यूज मत करो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? या तो लॉजिकल, या तो कोई लॉजिकल चीज पूछो, इलॉजिकल चीज मत पूछो जिसका तुम्हारा कोई लेने देना ना हो इस चीज से। सो भाई यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि हाउ द कंप्रेशन इज टेकिंग प्लेस, यानी कंप्रेशन वाला तक सबको समझ में आ गया? बताइए भाई। यस सर। यस। नाउ वी विल बी मूव टुवर्ड्स द, यानी कि इसका हम फर्स्ट स्ट्रोक और सेकंड स्ट्रोक की बात करते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि द वर्किंग ऑफ द टू स्ट्रोक इंजन इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू द फर्स्ट स्ट्रोक इंजन, बिकॉज उसमें क्या होता है, एक स्ट्रोक में एक प्रोसेस होता है। यहाँ पे एक स्ट्रोक में जो है एक से ज़्यादा प्रोसेस होंगे, पहले ही बता दिया मैंने तुम लोगों को। और उसके एडिशनल फिर उसकी वर्किंग को समझने से पहले मैंने ये तुम लोग को बता दिया कि तुम लोग बार बार ये ना पूछो कि सर इसमें एयर और पेट्रोल कैसा है, कैसा उसका कंप्रेशन हुआ। अब ये समझ में आगे नहीं आगे यहाँ तक सबको? यस। अब हम इसकी बात करते हैं कि हमारा ये फर्स्ट स्ट्रोक कैसे होता है। तो फर्स्ट स्ट्रोक सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रोक के लिए हम ये एज्यूम करते हैं कि पिस्टन हमारा टीडीसी पे है। वेयर इज अवर पिस्टन? पिस्टन कहाँ पे है भाई? टीडीसी पर। टीडीसी पे। टीडीसी पे। टीडीसी पे, और वो हमने पहले ही लर्न कर लिया है कि इसमें इसका कंप्रेस एयर और पेट्रोल का मिक्सचर कंप्रेस हो गया है। कंप्रेस करने का मतलब क्या हो गया है? कंप्रेशन का मतलब सिंपली यहाँ पे ये है कि जब कंप्रेशन हो जाता है तो एयर और पेट्रोल का प्रेशर जो है तुम्हारा इंक्रीज कर गया है, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर गया है। नाउ इट इज़, यानी उसका
वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग, कंप्रेशन का मतलब क्या होता है इन केस ऑफ द 4 स्ट्रोक इंजन। बट अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आया था तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि कंप्रेशन का करने का मतलब ये होता है कि हमने किसी चीज़ को कंप्रेस कर दिया, यानी उसका वॉल्यूम कम कर दिया। वॉल्यूम क्या कर दिया भाई? कम कर दिया। सो वॉल्यूम कम करने से क्या होता है, उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। यस या नो? यस सर। सो अब एट द यानी कि व्हेन द पिस्टन इज एट टीडीसी, जब हमारा पिस्टन टीडीसी पे है, सो उस कंडीशन में क्या है, एयर और पेट्रोल ऑलरेडी एट हाई टेम्परेचर पे है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे है। उसके बाद जैसे ही हमारा ये पिस्टन टीडीसी पे पहुंचेगा, फर्स्ट स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा तो हमारा फर्स्ट स्ट्रोक हो जाएगा, और बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा तो हमारा दूसरा स्ट्रोक हो जाएगा, और उसकी वर्किंग खत्म हो जाएगी। बस यही समझ लो जो समझना है तुम लोगों को। आधी वर्किंग तो हो गई, आधी बाकी है। सो व्हेन द पिस्टन इज एट जस्ट टीडीसी, जब पिस्टन हमारा जस्ट टीडीसी पे है तो हमारा स्पार्क प्लग से स्पार्क इनिशिएट हो जाता है। स्पार्क प्लग से क्या होता है भाई? हमारा स्पार्क इनिशिएट हो जाता है। स्पार्क प्लग का मतलब ये होता है कि स्पार्क इनिशिएट करना है। तो वो जैसे ही स्पार्क को इनिशिएट करता है, सो पेट्रोल और एयर, वो जो तुम्हारा ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे है, उसकी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो उसमें क्या होगा भाई? व्हाट विल हैपन? कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। वेरी गुड, यानी आग लग जाएगी, फायरिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो जैसे उसमें बर्निंग यानी कंबशन स्टार्ट होगा, उसका जैसे कंबशन स्टार्ट होगा, सो कंबशन होने से क्या होता है, हमारा फ्यूल बर्न होता है। फ्यूल यानी कि पेट्रोल एयर के साथ बर्न होगा, यानी बर्निंग होगी। सो बाय द बर्निंग ऑफ द फ्यूल इन एयर, एयर में जो फ्यूल की बर्निंग होती है इसको कहते हैं हम कंबशन। एंड बाय द कंबशन ऑफ एयर एंड पेट्रोल हीट एनर्जी रिलीज होती है। कौन सी एनर्जी रिलीज होती है बेटा? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी रिलीज होती है। नाउ दिस हीट एनर्जी विल अप्लाई द फोर्स ऑन द पिस्टन। ये पिस्टन पे क्या करेगी भाई? फोर्स लगाएगी। पिस्टन के ऊपर से फोर्स लगाएगी। पिस्टन के ऊपर से क्या लगाएगी? प्रेशर लगाएगी। फोर्स लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, यानी कि इस पे क्या लगाएगी? ये यहाँ पे क्या लगाएगी? प्रेशर लगाएगी। ये इस पर प्रेशर लगाएगी पिस्टन पे। सो पिस्टन पे जब ये प्रेशर लगाएगी तो पिस्टन कहाँ मूव करेगी? बीडीसी की तरफ। बीडीसी की तरफ। तो पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। ये होता है हमारा पावर स्ट्रोक। यानी एक तो इसमें पावर स्ट्रोक भी हो रहा है। पावर स्ट्रोक तो हो रहा है कि व्हेन द बर्निंग स्टार्ट हो गई है तो हीट एनर्जी रिलीज हो गई है। नाउ दैट हीट एनर्जी इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन द पिस्टन एंड पिस्टन हैज बीन स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द बीडीसी। बीडीसी की तरफ उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। एंड वी नाउ वी आर गेटिंग द पावर ऑन द क्रैंक केस। क्रैंक शाफ्ट में पावर मिलना स्टार्ट हो गई है। तो पावर तो मिल रही है, उसके साथ साथ और क्या हो रहा है? कोई मुझे ये बताएगा? व्हेन द पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, उसके साथ साथ और क्या हो रहा है? ये बता दो मुझे। सर एग्जॉस्ट पोर्ट में से निकलना स्टार्ट कर देगा स्मोक। नहीं, एग्जॉस्ट में से अभी निकलना स्टार्ट नहीं करेगा। ये बताओ कि और क्या हो रहा है? मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था इसके बारे में। तो पिस्टन टीडीसी की तरफ से पीडीसी की तरफ मूव करता है तो क्या होता है? मैंने ऑलरेडी आधा इसमें पहले ही बता दिया था। मैंने यानी जैसे ही पिस्टन अभी पूरा नीचे नहीं आया बीडीसी की तरफ, यानी सपोज करो यहाँ पे मिडिल में आया, अभी यहाँ पे आया है, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा बताओ? व्हाट विल हैपन? पहले पोर्ट हो जाएगा सर इनटेक पोर्ट क्लोज हो जाएगा सर इनटेक जब पिस्टन टीडीसी पे क्लोज हो जाएगा सर। सुन लो, तुम लोगों को कुछ नहीं बताया। जब पिस्टन हमारा पहले ही मैंने तुम लोगों को ये बात बता दी थी कि जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है, हमारा इनलेट पोर्ट पूरा ओपन होता है। ट्रांसफर पोर्ट और ये तुम्हारे एग्जॉस्ट पोर्ट जो होते हैं ये फुल्ली कवर होते हैं। अब जब पिस्टन नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा तो धीरे धीरे हमारा इनटेक पोर्ट जो होगा तुम्हारा पार्शियली क्लोज हो, उसके बाद हाफ क्लोज हो, उसके बाद फुल्ली कवर हो जाएगा। यस या नो? ये बताइए। यस सर। सो होगा क्या जब पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है? एक तो ये ट्रांसफर पोर्ट जो होगा तुम्हारा क्लोज होगा, दूसरा इसके क्रैंकेस के अंदर जो तुम्हारा एयर और पेट्रोल का मिक्सचर है उसका कंप्रेशन भी होगा साथ साथ। यस या नो बताइए मुझे। कंप्रेशन होगा नहीं होगा? यस या नो बताइए। यस सर होगा। सो हमें पावर भी मिल रही है और कंप्रेशन भी हो रहा है। कंप्रेशन लेकिन कहाँ हो रहा है? क्रैंक केस में हो रहा है। क्रैंक केस में हो रहा है, ऊपर नहीं हो रहा है, क्रैंक केस में हो रहा है। अब ये तो हमारा जब पिस्टन हमारा पूरा का पूरा बीडीसी पर जब आ जाएगा तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा? जब पिस्टन हमारा पूरा का पूरा पहले जब पिस्टन हमारा क्या होगा? सबसे पहले यानी बीडीसी के आने से पहले पूरी सुन लो, मैंने पहले ही बताया था कि इसकी जो तुम्हारी वर्किंग है थोड़ा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू द 2-4 स्ट्रोक इंजन। तो तुम लोगों को माइंड और दिमाग खोल के रखो अपना, सो दैट तुम लोगों को समझ में आ जाए।
सो एक तो ये हो रहा है कि व्हेन द पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी कि हमें पावर स्ट्रोक मिल रहा है हमें, यानी कि हमारा फ्यूल बर्न हो रहा है, हीट एनर्जी से हमें पावर मिल रही है। दूसरा हमारा क्या हो रहा है कि हमारा कंप्रेशन हो रहा है। यस या नो? यहाँ तक समझ में Yes, आया? sir. आवाज कट गई बीच में आपकी। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया भाई? अरे आवाज आ रही नहीं आ रही? अब आ रही है। Yes, sir, आ रही है। सो पहले स्ट्रोक में समझ में आया क्या हो रहा है? यस सर, क्या? फर्स्ट स्ट्रोक में सबमर्शन हो रहा है। कंबशन हो रहा है, पावर मिल रही है और तो पिस्टन नीचे जा रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन भी हो रहा है। अब क्या होगा? अब पिस्टन सपोज करो हमारा यानी कि सब जैसे ही पिस्टन बीडीसी पे पहुंचेगा, यानी कि सपोज करो इस बीडीसी पे पहुंचेगा, यानी कि यहाँ पहुंचा पहले पिस्टन, अभी ट्रांसफर पोर्ट हमारा जो है कवर नहीं हुआ है। पिस्टन सपोज करो बीडीसी पे पहुंच गया है, तो बीडीसी पे पहुंचता है तो हमारे सबसे पहले जो ओपन होता है तुम्हारा एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होता है। यस या नो? यस सर। Yes, sir. जब पिस्टन हमारा बीडीसी पे पहुंच जाएगा तो एग्जॉस्ट पोर्ट हमारा ओपन हो जाएगा, और एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाएगा, उसके एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होती क्या होगा हमारा पिस्टन अब बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। यस या नो? यस सर। Yes. तो इसके अंदर जो हमारा स्मोक होगा, यानी जो हमारा फ्यूल एयर के साथ बर्न हुआ है, स्मोक जो कलेक्ट हुआ है, जो धुआं इकट्ठा हुआ, वो कहाँ जाएगा? एग्जॉस्ट पोर्ट से कहाँ जाएगा भाई? बाहर। बाहर की तरफ जाएगा। और तुम्हारा क्या होगा? पिस्टन ने जैसे ही ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया है, यहाँ पे जो हमारा कंप्रेस एयर और पेट्रोल का फ्रेश मिक्सचर था, फ्रेश मिक्सचर है ना, तो फ्रेश मिक्सचर जो होगा तुम्हारा, वो फ्रेश जो एयर फ्यूल मिक्सचर होगा तुम्हारा, वो ट्रांसफर पोर्ट से ऊपर की तरफ मूव करेगा नहीं करेगा सिलेंडर के अंदर? यस सर। Yes, अंदर में चला जाएगा। तो अब ये बात ध्यान से सुन लो, ये बात तुम लोगों को मैंने पहले नहीं बताई थी, बस मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि हाउ द एयर एंड पेट्रोल मिक्सचर इज कमिंग इनसाइड द क्रैंककेस एंड हाउ इट इज मूविंग फ्रॉम क्रैंककेस टू द इंजन, ये सिलेंडर में कैसे जा रहा है थ्रू द ट्रांसफर पोर्ट। अब उसके आगे की बात सुनो, यहाँ पे हमारा स्मोक है ऑलरेडी, यानी कि धुआं है, और यहाँ हमारा ट्रांसफर पोर्ट से जो फ्रेश एयर और पेट्रोल का मिक्सचर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये सिर्फ ऊपर की तरफ मूव करेगा नहीं करेगा? ये सिर्फ बताइए। यस सर। Sir, वो क्या करेगा? दो काम करेगा यहाँ पे। एक तो वो ऊपर की तरफ जा ही रहा है, दूसरा ये करेगा कि यहाँ पे जो तुम्हारा जो स्मोक इकट्ठा हो गया था, जो स्मोक इकट्ठा हुआ था, उसको भी बाहर की तरफ पुश करेगा नहीं करेगा? ये सिर्फ बताइए। yes, sir, करेक्ट। बिकॉज जो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर आया है और ये वाला पोर्ट जो है ओपन है, तो ये भी तुम्हारा बाहर निकलने की कोशिश करेगा नहीं करेगा भाई? जी यस सर। सर। यहाँ से जो एयर पेट्रोल आएगा वो पहले इधर की तरफ भगेगा नहीं भगेगा? ऊपर तो बाद में जाएगा, पहले यहाँ भगेगा नहीं भगेगा? Yes, sir. सो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लगाते हैं डिफ्लेक्टर। अब तुम लोगों को बता रहे हैं कि डिफ्लेक्टर का रोल क्या होता है, दैट्स वाई मैंने भी तुम लोगों को बताया नहीं था। यहाँ पे हमारा ये लगा है डिफ्लेक्टर, ये कर्व शेप का जो लगा है ये डिफ्लेक्टर है, कह रहा कर्व शेप का ये क्या हमारा? यस सर। ये डिफ्लेक्टर है। डिफ्लेक्टर। तो डिफ्लेक्टर हम क्यों लगाते हैं? यही इसलिए लगाते हैं कि हम डिफ्लेक्टर ना लगाए तो जितना भी एयर और पेट्रोल का मिक्सचर यहाँ से ट्रांसफर पोर्ट से आएगा, सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। सो डिफ्लेक्टर का फंक्शन क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे आता है तो उसको डिफ्लेक्ट करता है, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। डायरेक्शन को क्या कर देता है भाई? ये चेंज कर देता है, यानी कि ये सीधा इधर ना भागे बल्कि ऊपर की तरफ भागे, ऊपर की तरफ मूव करे। एंड सेकंड थिंग ये पिस्टन ऑलरेडी इज मूविंग, पिस्टन ऊपर की तरफ भी मूव कर रहा है, तो थोड़ा सा जो भी चार्ज हमारा आता है, एक तो वो क्या काम करता है, थोड़ा बहुत तो निकल जाता है, बहुत माइनर क्वांटिटी में निकलता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि नहीं निकलता है, माइनर क्वांटिटी में वो जो स्मोक है उसके साथ निकल जाता है, लेकिन स्मोक को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। वो स्मोक को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है फ्रेश एयर और पेट्रोल का मिक्सचर। जो फ्रेश एयर और पेट्रोल का मिक्सचर जो स्मोक को बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है, उसको कहते हैं स्कैवेंजिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं भाई हम उसको? स्कैवेंजिंग प्रोसेस, स्कैवेंजिंग प्रोसेस कहते हैं इसको। स्कैवेंजिंग यानी कि जो तुम्हारा ये कभी कभी मालूम कर लिया था स्कैवेंजिंग क्या होता है। स्कैवेंजिंग प्रोसेस होता है यानी कि स्केप कर रहा है। स्कैवेंजिंग का मतलब सिंपली क्या कर रहा है, ये स्केप कर रहा है। किसको स्केप कर रहा है? इसको स्केप कर रहा है ये स्केप कर रहा है जो स्मोक है हमारा, स्मोक को बाहर निकालने में स्केप के मतलब हेल्प कर रहा है, थोड़ा सा खुद भी निकल जा रहा है उसके साथ। सो इस हेल्पिंग नेचर ऑफ द फ्रेश एयर मिक्सचर विच इज़ हेल्पिंग, जो हेल्प कर रहा है तुम्हारा इसके अंदर सिलेंडर के अंदर जो तुम्हारा स्मोक है, स्मोक है उसको बाहर निकालने में, उसको कहते हैं स्कैवेंजिंग। समझ में आया? कुछ नहीं है, यानी कि हेल्प कर रहा है। सिंपल सी बात है भाई।
सबको समझ में आ गया? Yeah. सो अब हमारा ये तो एक स्ट्रोक हो गया था। दूसरे स्ट्रोक में हो क्या रहा हमारा? दूसरे स्ट्रोक में दो चीज़ें हो रही हैं। क्या हो रही है? दो चीज़ें बताओ मुझे। व्हाट इज हैपनिंग इन सेकंड स्ट्रोक? अब बताओ मुझे क्या क्या हो रहा है दूसरे स्ट्रोक में। एक तो ये हो रहा है हमारा कि एग्जॉस्ट प्रोसेस हो रहा है। यस या नो? यस सर। दूसरा, जो फ्रेश चार्ज जो है इसके अंदर आएगा और पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। पिस्टन इसके ऊपर मूव करेगा, नहीं करेगा ऊपर, यहाँ पर पहुँचेगा तो ये तुम्हारा एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हो जाएगा। अब क्या होगा? एग्जॉस्ट पोर्ट जब बंद हो जाएगा फिर उसका ट्रांसफर पोर्ट भी बंद हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो जो फ्रेश चार्ज हमारा इसके अंदर आया है उसका क्या होगा? कंप्रेशन होगा, नहीं होगा सिलेंडर के अंदर? यस सर। सो अगेन क्या हो रहा है? तुम्हारा कंप्रेशन भी हो रहा है और एग्जॉस्ट भी हो रहा है। और तुम्हारा जैसे जैसे पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा यहाँ से तुम्हारा इनलेट पोर्ट ओपन होगा और फ्रेश चार्ज क्रैंक केस के अंदर भी आएगा। सो साइमल्टेनियसली इसमें कई सारे प्रोसेस एक साथ होते रहते हैं। मैंने तुम लोगों को पहले बताया था। यस या नो? यस सर। भाई जैसे जैसे पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा तो हमारा ये वैक्यूम क्रिएट होगा, नहीं होगा यहाँ पे? यस सर। वो वैक्यूम क्रिएट होगा तो वैक्यूम क्रिएट होने से तुम्हारा ये जैसे ही इनलेट पोर्ट हमारा अनकवर होगा, फ्रेश चार्ज जो है तुम्हारा इसके अंदर भी आएगा और जो फ्रेश चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया उसका कंप्रेशन भी होगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग बिफोर द वर्किंग ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रोक। सो ये मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा फ्रेश चार्ज कैसे अंदर आओ, मैंने पहले बता दिया था कि हाउ द फ्रेश चार्ज इज कमिंग इनसाइड द सिलेंडर एंड उसका कंप्रेशन कैसे हो रहा है। सो मैंने तुम लोगों को पहले बताया था। ओनली हमें दो प्रोसेस के बारे में जानना था, सक्शन और कंप्रेशन के बारे में तुम लोगों को पहले बता दिया था। तो फर्स्ट स्ट्रोक में तुम लोग ये हमारा क्या हो रहा है कि फर्स्ट स्ट्रोक में जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ पावर स्ट्रोक हो रहा है हमारा, और जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव कर रहा है तो हमारा क्या हो रहा है भाई? एग्जॉस्ट प्रोसेस हो रहा है और सक्शन और वो तुम्हारा पहले ही बता दिया मैंने। सो लेकिन ये अगर हम सबको कंबाइन करते हैं तो दो ही स्ट्रोक में सारे प्रोसेस हो जाते हैं। दो ही स्ट्रोक में सारे प्रोसेस हो जाते हैं। अब तुम देखो दो स्ट्रोक में कैसे हो रहे हैं। व्हेन द पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, सो हमारा यहाँ पे सक्शन भी हो रहा है और कंप्रेशन भी हो रहा है। यस या नो? बताइए भाई। यस सर। और जब पिस्टन ऊपर से टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव कर रहा है उसमें जो है तुम्हारा पावर यानी कि पावर कंबशन भी हो रहा है और हमारा क्या हो रहा है? एग्जॉस्ट भी हो रहा है। यस या नो? यस सर। यस सर। भाई देखो हमारा कंबशन तो हो गया जब पिस्टन हमारा टीडीसी पे था और जैसे बीच में आया हमारा ये एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हुआ। सो यहाँ से जो बर्न गैसेस थी वो भी निकलना स्टार्ट हो गई। तो हमारा यानी कि पिस्टन जब ऊपर नीचे से ऊपर मूव कर रहा है तो हमारा सक्शन और कंप्रेशन हो रहा है, और जब ऊपर से नीचे मूव कर रहा है टीडीसी से बीडीसी की तरफ तो कंबशन और एग्जॉस्ट हो रहा है। सो दो ही स्ट्रोक में सारे प्रोसेस यानी कि ऑल फोर प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड इन टू स्ट्रोक ओनली। सो बट इसकी वर्किंग को समझाने के लिए मैंने तुम लोगों को सही से समझा दिया है कि ये तुम लोग पहले समझ लो कि हाउ द एयर और पेट्रोल का मिक्सचर इसके अंदर कैसा रहा, उसका कैसे कंप्रेशन हो रहा। ये एक ही स्ट्रोक में होता है। और जब पिस्टन उसके बाद जब पिस्टन टीडीसी पे होता है उसके बाद टीडीसी से बीडीसी पे आता है तो उसमें क्या होता है कि कंबशन होता है और एग्जॉस्ट होता है। तो दो प्रोसेस कंप्रेशन और सक्शन जो तुम्हारे वो व्हेन द पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी तब हो जाते हैं, और कंबशन और एग्जॉस्ट जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है तब हो जाते हैं साइमल्टेनियसली। अगर हम एक्चुअल कंडीशन में देखें तो एक स्ट्रोक में तीन प्रोसेस भी होते हैं। एक स्ट्रोक में तीन प्रोसेस भी होते हैं लेकिन उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं बिकॉज तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। वी आर कंसीडरिंग ओनली के टू प्रोसेस आर अकरिंग व्हेन द पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी की तरफ मूव कर रहा है तो हमारा सक्शन और कंप्रेशन हो रहा है, और जब टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव कर रहा है तो हमारा क्या हो रहा है भाई? कंबशन और एग्जॉस्ट हो रहा है। सो ऑल फोर प्रोसेस इज सबको समझ में आ गए? यस सर। भाई क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? अरे किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि द वर्किंग थोड़ा इसको समझने के लिए मैंने तुम लोगों को वैसे स्टार्ट किया सो दैट कि यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। सो सबको समझ में आ गया हो तो बताओ, अदरवाइज आई विल रिपीट अगेन। बताओ भाई। यस सर, समझ आ गया। समझ में आ गया ना कि कैसे ये वर्क कर रहा है टू स्ट्रोक इंजन। इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द फोर स्ट्रोक इंजन। फोर स्ट्रोक में एक स्ट्रोक में एक ही प्रोसेस होता है, बट यहाँ पे एक तो यह है कि हम इसमें जनरली ये कंसीडर करते हैं कि हमारा पिस्टन जो पहले स्ट्रोक में हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव कर रहा है तो इसमें कहाँ से स्टार्ट होता है? कंबशन और एग्जॉस्ट से स्टार्ट होता है। कंबशन हो रहा है और एग्जॉस्ट हो रहा है। उसके बाद जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव कर रहा है तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं हमारा सक्शन और कंप्रेशन हो रहा है। क्लियर है भाई? यानी यहाँ से यहाँ पे जैसे पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा हमारा ये जो तुम्हारा इससे अंदर फ्रेश एयर और पेट्रोल का मिक्सचर आएगा, और जो ट्रांसफर पोर्ट से फ्रेश एयर का मिक्सचर यहाँ पे आ गया तो उसका कंप्रेशन होगा।
तो हम ये कंसीडर कर लेते कि हमारा फर्स्ट स्ट्रोक में जो है पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, इसमें क्या होगा, हमारा हमें पावर मिलेगी और हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा और एग्जॉस्ट प्रोसेस होगा। और व्हेन द पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, सो इनलेट पोर्ट हमारा अनकवर होगा, ट्रांसफर पोर्ट भी अनकवर हो जाएगा और एग्जॉस्ट पोर्ट भी कवर हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा, तो कंप्रेशन होगा उसका, हमारा जो फ्रेश चार्ज ट्रांसफर पोर्ट से ऊपर सिलेंडर में पहुंच गया है। सो सबको समझ में आ गया यहाँ तक अप टू दिस पॉइंट? अरे ये सुनो, बताओ सबको समझ में आया? सर थोड़ा एनिमेशन के थ्रू समझा देते हैं। क्या क्या बेटा? एनिमेशन के थ्रू। एनिमेशन तुम लोगों का अपना आप देखो, तुम लोगों के पास टाइम है 24 आवर्स से, एनिमेशन देखो कुछ भी देखो। मेरा जो मेन मोटिव था वो समझाना था, मैं एनिमेशन तुम लोग देखो, उससे कोई मतलब नहीं मेरा। ये समझ में आया नहीं है सब लोगों को? ये बताओ जो मैंने तुम लोगों को बताया। अरे समझ में आया नहीं आया बेवकूफ? यस सर। नहीं समझ में आया तो आई विल रिपीट अगेन। बता दो कि इसमें और क्या बताऊं? सारे प्रोसेस के बारे में बता दिया और इसमें उसके अलावा कुछ है नहीं। इसमें 4 ही प्रोसेस होते हैं, दो स्ट्रोक में कंप्लीट होने होते हैं। तो मैंने बता दिया कि पहले स्ट्रोक में क्या हो रहा, दूसरे स्ट्रोक में क्या हो रहा। फर्स्ट स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव कर रहा है, तो हमारा क्या कहते हैं, तुम्हारा कंबशन और एग्जॉस्ट हो रहा है। और जब हमारा क्या कहते हैं, तुम्हारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव कर रहा है सेकंड स्ट्रोक में, तो हमारा सक्शन और कंप्रेशन हो रहा है इसमें। और इसके अलावा और क्या है? यही तो इसमें है। डिफरेंस क्या होते हैं? सर हर बार सेम प्रोसेस करना, फिर वो ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा। हाँ बेटा, ये सर तो हाँ वो तो रिपीट, ये साइकिल तो रिपीट होती रहेगी। बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हमारा क्या होता है कि हमारा जो एक मिनट में ये 1000 टाइम्स अप डाउन मूव करता है। 1000, अगर सपोज करो आई एम सेइंग फॉर एग्जांपल कि मेरे इंजन की जो स्पीड है वो 1000 आरपीएम है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1000 आरपीएम का मतलब यानी कि एक मिनट में ये कितनी रिवोल्यूशन, यानी एक मिनट में कितनी बार अप एंड डाउन मूव कर रहा? 1000 टाइम। तो अब तुम लगाओ कि एक सेकंड में कितने टाइम्स ये ऊपर अप डाउन मूव कर रहा होगा। तो ये साइकिल तो प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यूएशन में। और वैसे तभी तो पावर मिलती रहती है हमें, तभी तो हमारा व्हीकल मूव करता है। ये सुनो, और ये 2 स्ट्रोक इंजन किस व्हीकल में लगा होता है कोई बताएगा? वेयर नाउ डेज 2 इंजन जो आजकल तो बंद हो गया है, 2 स्ट्रोक इंजन पहले यूज़ किया था। आप किस में लगा होता है? कोई एग्जाम्पल बताएगा? 2 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन जो हमारा लगा होता है तुम्हारा, वो लगा होता है यामा की बाइक में। किसमें लगा होता है? यामा की बाइक। बाइक बाकी रिमेनिंग आइदर स्कूटी हो और तुम्हारी स्प्लेंडर की बाइक हो, होंडा की बाइक हो, कुछ भी हो, सब में जो तुम्हारा 4 स्ट्रोक इंजन आने लगा। पहले 2 स्ट्रोक इंजन आता था, सब बंद हो गए। अब 2 स्ट्रोक इंजन ओनली होता है तुम्हारा यामा की बाइक में, वो भी बंद हो गई इंडिया में, अब नहीं बनती है। सही है? तो समझ में आ गया 2 स्ट्रोक इंजन कहाँ होता है और कैसे वर्क करता है। बिकॉज इसमें क्या होता है, हमें टॉर्क जो है हाई मिलता है। बिकॉज इन ईच रिवोल्यूशन में हमें, इन केस ऑफ द 4 स्ट्रोक इंजन, वी विल गेट द पावर इन 2 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक। 2 रिवोल्यूशन में हमें एक बार पावर मिलती है। बट इन केस ऑफ द 2 स्ट्रोक इंजन हमें एक रिवोल्यूशन में एक बार पावर मिल जाती है। यानी कि वह द क्रैंक जो हमारा 360 से रोटेट हो जाता है, एक रिवोल्यूशन हो गया तो हमें पावर मिल गई। बट 4 स्ट्रोक में हमारा साइकिल कितने में कंप्लीट होता है? 2 रिवोल्यूशन में कंप्लीट होता है। यस या नो? यस सर। सो हमें उसमें हमें दो, उसमें क्या होगी, जब दो हमारे जब 4 मतलब जो जब दो बार हमारा क्रैंक घूम जाएगा तब हमें एक बार पावर मिलेगी। और इसमें हमें जब एक ही बार में मुझे तो पावर मिलेगी, तो इसमें पावर ज़्यादा मिलती है। 2 स्ट्रोक इंजन से हमें पावर ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू द 4 स्ट्रोक। बट बाकी चीज़ें जो इसमें चीज़ें जो है वो सब कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको ऑब्सोल्यूट कर दिया है। जो ऑटो इंडस्ट्री है उसने इसको ऑब्सोल्यूट कर दिया। इसको नाउअडेज दिस हैज़ नॉट बीन यूज्ड, ये यूज़ नहीं किया जाता है। तो समझ में आ गया नहीं आया? बस 2 स्ट्रोक, बिकॉज इन योर सिलेबस ओनली 2 स्ट्रोक है। ये समझ में आया 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैसे वर्क करता है? ये सिर्फ बताइए। यस सर। मैंने तुम लोगों को कहा था कि 4 स्ट्रोक के बारे में जो है तुम लोग बताओगे मुझे कि 4 स्ट्रोक इंजन कैसे वर्क करता है। डीजल इंजन, अब मुझे बताओगे 4 स्ट्रोक डीजल इंजन कैसे वर्क करता है, क्या होता है इसमें। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। 4 स्ट्रोक के बारे में, डीजल के बारे में बताइए। एनीवन बताइए, जल्दी बताइए कि हाउ इट इज़ वर्क, जल्दी बताओ। 4 स्ट्रोक में तो सिंपल है। पहले स्ट्रोक में कौन सा प्रोसेस होगा? सक्शन स्ट्रोक होगा। दूसरे में कंप्रेशन होगा। तीसरे में वर्किंग। तीसरे में वो कंबशन होगा। हाँ कंबशन होगा, पावर मिलेगी। कंबशन होगा तो पावर मिलेगी। उसके बाद एग्जॉस्ट होगा। ठीक है, ये तो 4 प्रोसेस है। ये तो पेट्रोल इंजन में भी कॉमन थे, डीजल इंजन में भी कॉमन थे।
यहाँ पे Yes, sir. डिफरेंस क्या है ये बताओ मुझे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीजल एंड पेट्रोल हियर, ये बताओ मुझे, मेरी मेन तो ये पता करना है ना, वो तो हम लोगों ने सब पढ़ लिया है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दैट। स्पार्क प्लग नहीं होता इसमें। स्पार्क प्लग नहीं होता, क्या होता है स्पार्क प्लग की जगह? फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर। क्या काम होता है फ्यूल इंजेक्टर का? सर ये पढ़ाया नहीं है हैं? सर, ये तो आज ही पढ़ा रहे हैं ना। अरे तो ये आज ही पढ़ा रहे, मैंने तुम लोगों से क्या कहा था, व्हाट आई हैव गिवन सर सर सिर्फ उसमें सक्शन स्ट्रोक में जो है एयर आती है अंदर और फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल डाला जाता है। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने तुम लोगों से क्या कहा था, व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट यस्टरडे, यानी कि लास्ट ट्यूसडे, क्या कहा था ये बताओ मुझे। मैंने कहा था कि सब लोग जो है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग पढ़ के आएंगे, मैं मालूम करूँगा, ये कहा था नहीं कहा था? अरे ये सुनो बताओ, ये भी नहीं कहा था? अरे बताओ भाई, चुप क्यों हो गए? क्योंकि तुम लोगों को पढ़ने लिखने का तो कुछ काम है नहीं, दिन भर मोबाइल चलाना और बस तफरी करना, पढ़ना लिखना तो है नहीं तुम लोगों को। आई विल आस्क द 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग, मैं तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा 2 स्ट्रोक की और 4 स्ट्रोक दोनों की डीजल इंजन की। सो ये प्रिपेयर करके आना कि क्या डिफरेंस होता है, कैसे होती है वर्किंग इसकी। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है।